हे गाइस, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास और एक वीडियो आया, तो इस वीडियो के बिहाफ में मैं आप लोगों से पहले ये वीडियो देख लेते हैं और इसके बिहाफ में मेरे कुछ ओपिनियंस हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। और आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कैसे कोई भी कुछ जो अपना ओपिनियन है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और ठीक है, और पहले वीडियो देख लेते हैं। चाइना के पास एक काफी पावरफुल वेपन है और एज इंडियंस इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हम पर होने वाला है। Not COVID-19, not nukes, something even more dangerous, the economy. आज हम बात करने वाले हैं चाइना के मास्टर प्लान के बारे में, हाउ चाइना डोमिनेट्स, bankrupts and becomes a superpower, and how you and I will be impacted by that. And if you feel कि हमारे रिसर्च में फैक्ट्स है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। In March, the Indian Navy found 12 underwater drones coming all the way from Beijing. Why? Right now, the whole world is fighting against COVID and China is pushing its borders against Japan, against Australia, against Vietnam and even India. Why? In the middle of a health crisis, China is getting political. Why? चाइना और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत समय से रहा है। चाइना ओपनली लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी मानता है। Since the last few days, you must have heard of problems at our border, both in Ladakh and Sikkim. The cases in India are not low. This is the absolute worst time for our country to go to war. Timing is everything. In this scenario, China wants to take advantage. Neighbors को help करने की तो बात छोड़ो, China wants to wage war on them. The president Xi Jinping has publicly told his military to prepare for war. और इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा हथियार होने वाला है इकोनॉमी। I'll explain from the beginning. Asia and Africa have a lot of countries that need financial help. But to take a loan from the IMF or the World Bank, the country needs to meet certain criteria. But China is helping them. China is building a highway in Pakistan. China is funding a port in Sri Lanka and many other projects in countries like Myanmar, Maldives and even Nepal. यहाँ तक तो ठीक है यार, क्योंकि वैसे तो जापान भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, तो चाइना के इन्वेस्टमेंट से क्या फर्क पड़ता है? Problem is, these countries may not be able to pay China back, and that's when China's debt diplomacy begins. Pakistan owes more money to China than any other financial institution in the world. Recently, Pakistan unearthed a scam of $630 million regarding two Chinese companies that supplied power for the China-Pakistan economic corridor. चाइना खुद के ही बिल्स ओवरस्टेट कर रहा है। अगर किसी चीज की कॉस्ट 100 रुपीज है तो बाय डिफॉल्ट उसकी कॉस्ट 150 बता रहा है। This port in Sri Lanka was supposed to create opportunities, but it is mainly empty. It takes time for a country to recover these costs built in infrastructure projects. But if nobody uses them, how do they recover costs? Timing is everything. जैसे ही टाइम गुजरता है, लोन बढ़ता जाता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। And when a country cannot pay back the loan, China comes back as a hero and says, "Okay, if you can't pay us back, then let us handle the operations." ऐसे करके धीरे-धीरे उस कंट्री में चाइनीज पॉपुलेशन बढ़ता है। Chinese debt trap is like getting addicted to sugar. Your body needs sugar because it gives you an instant boost. And by the time you realize it's not actually good for you, it is too late. You're already trapped. Loans, interest, scams, and the health of your country is completely destroyed. Right now, these bases outside China are used for trade. But if there is a conflict, China can easily convert these bases into military bases. Djibouti is a small African country and China practically owns it. Now China has a military base in Africa and it is threatening the US. All of this started with strategic investments in Africa. You see, a picture can speak 1,000 words. Look at China's different investments in the last few years. Do you see a pattern? We are surrounded by China. This is China's string of pearls, using the economy to surround India and stay prepared. In case of war, chances are कि अटैक एक साइड से नहीं होगा, अटैक हर साइड से होगा. China is using economy to boost their politics and military. China is smart. So basically, China has created a situation for us where we cannot afford a war. Because अगर कोई conflict होता है तो tackling it by force is not an option for India anymore. Because with money power, China has its allies all around us. So if we can't use bullet force, let's use wallet force. If economy is a weapon, then we are its distributors. We have to boycott Chinese products. इसके बारे में मैंने बहुत सोचा। ये कोई WhatsApp forward का motivational message नहीं है, but actually fact है। Mr. Sonam Wangchuk explained this in his video. We have to remove Chinese software from our phone within a week and Chinese hardware from our lives in a year. Right now, आपके रूम में 8 out of 10 चीजें made in China होंगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें फेंक देनी है? बिल्कुल नहीं। ये काफी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन फ्रॉम नाउ ऑन कोई नई चीज लेते वक्त हम ये जरूर देख सकते हैं कि क्या कोई अलग अल्टरनेटिव अवेलेबल है। अगर हम धीरे धीरे ऐसा करने लगे तो नेक्स्ट ईयर 5 out of 10 चीजें मेड इन चाइना होंगी, उसके अगले साल और कम, फिर और कम,
एंड देन सिर्फ कुछ ही एसेंशियल चीजें होंगी जिनके लिए हम चाइना को पे करेंगे. We keep thinking that it is too late, we are already too dependent on China, and that is true. We are late. But in countries की तरह, we are not in China's trap. Not yet. You see, in this COVID-19 situation, our government realized how dangerous China could be. और उन्होंने FDI यानी Foreign Direct Investment को monitor करना start किया. So that कोई भी Indian company इस crisis situation में China की puppet ना बने. इतना सब होने के बाद भी, ये सब जानने के बाद भी, अगर हम दिवाली में एक दिया जलाने के बजाय चाइना से आने वाले लाइट्स लगाएंगे तो इस रोशनी से कौन सा अंधेरा दूर होने वाला है. You see, timing is everything and this is the time to learn the truth about China. अगर 1% लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस बात को समझ पाए, I think ये वीडियो सक्सेसफुल. It is the time for us common people to make some uncommon choices. क्योंकि कभी कभी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए थोड़ी चीनी कम करना जरूरी है. सो गाइस, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे शायद कुछ ये चीज़ बोलना चाहिए. तो मैंने मेरा मोबाइल चेक किया, ये किया, तो बहुत कुछ किया. तो उसके बाद पता चला बहुत सारी चीज़ मैं चाइनीज़ ही यूज़ कर रहा हूँ और ज़्यादातर. तो उसके बाद मैंने स्टेटस डाले, फिर ये डाले कि बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, ये वो वगैरह. तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए और बोले कि चाइना ऐसे नहीं प्रोडक्ट ये कर सकते, ये नहीं हो सकता, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है. तो मैं इन सब लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, अभी नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं. तो कुछ लोग तो ऐसे भी निकल के आए कि बोले भाई ये तो एकदम ही प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ही ये नहीं है, हो ही नहीं सकता भाई, ये तो थोड़ी ना, क्योंकि गवर्नमेंट साथ में नहीं है. मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसीज़ होता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ तो समथिंग है लॉज, तो उस वजह से शायद वो लोग अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, जितना दूर मुझे पता है. लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं. तो मैंने पहले टिकटॉक अनइंस्टॉल किया, फिर शेयरिट अनइंस्टॉल किया, और भी जितने भी सारे ऐप हैं तो देखा, चेक किया, और जो चाइनीज़ है तो उसको अनइंस्टॉल कर दिया. ठीक है, तो अनइंस्टॉल कर दिया. तो अब बात आती है कि एक पोस्ट की, तो ये देख लेना. ठीक है, तो आप उसमें नोटिस कर सकते हो कि एक बंदे ने पोस्ट किया कि मैंने पबजी अनइंस्टॉल कर दिया, और क्योंकि बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स. बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे अचानक से पता नहीं था कि पबजी चाइना प्रोडक्ट है. तो मैंने गूगल के मैंने बोला कि मैं ढूंढ रहा था हर एक ऐप का, तो मुझे पता चला कि साउथ कोरिया. तो मैंने उसके कमेंट बॉक्स पे, आप लोग देखना कि मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था कि वो साउथ कोरिया का ऐप है. ठीक है, तो वो बात बोलने के बाद उसने रिप्लाई किया, तो मैं जो बोल रहा था, तो उसके बिहाफ में मैंने उसको, वो बंगाली में है तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ. तो मैंने उसको बोला, देख भाई, मुझे टेंशन के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं तुझको जान के अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं पबजी भी अनइंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए देश आ गया, पबजी नहीं. तो इसके बाद मैं गया गूगल पे और सर्च किया व्हाट इज़ पबजी, और पबजी के बारे में कुछ चीज़ जाना. तो मैं पहले देख लो आप लोग. पहले मैंने सर्च किया कि पबजी किस कंट्री से है, किस कंट्री से बिलोंग करता है. तो आंसर आया साउथ कोरिया. ठीक है, फिर मैंने सर्च किया कि पबजी का ओनर कौन है, तो वहाँ पे आया ब्रेंडन ग्रीन. फिर मैंने सर्च किया कि ब्रेंडन ग्रीन कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो आ गया आयरलैंड, मतलब आयरिश है. मतलब क्या है, मतलब ठीक है, चलो अब ठहर जाओ. अब इसके बाद और एक चीज देखो. तो उसके बाद मैंने जब सर्च किया कि चाइना बिलोंग करता है क्या पबजी को, तो वहाँ पे आंसर आया कि पबजी साउथ कोरिया से बिलोंग करता है, और इसका कुछ प्रोडक्शन है क्या, ब्लू होल क्या, ऐसा कुछ. ठीक है, इसके बाद मैं जाता हूँ कि मुझे जो दोस्त ने बोला था कि ये टेंशन गेम्स है, तो टेंशन गेम्स और ये दिखाया जाता है, और टेंशन चाइनीज़ है. तो पहले मैंने देखा ठीक है चाइनीज़ है, तो मैंने सर्च किया तो ये चीज़ आया. इसके बिहाफ में मैं दिखा दे रहा हूँ. तो इसके बाद मैंने सर्च किया कि टेंशेंट और पबजी के बीच में रिलेशन है क्या. तो टेंशेंट और पबजी के बीच में जो रिलेशन मुझे पता चला, तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, आप लोग देख लो. तो टेंशेंट पार्शियली
पबजी को ओन करता है, 10% स्टॉक्स है उसका ब्लू होल के अंडर, मतलब ब्लू होल का कुछ स्टॉक्स वॉक्स है। तो अब आ जाता है कि चाइनीज़ कंपनी टेंशन जो है वो पबजी को बिलोंग तो करता है। अब ये मैटर है, अब क्यों करता है वो भी थोड़ा जान लेते हैं। चाइना ने बैन किया पबजी को और उसके बाद चाइनीज मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट सिक्योर किया उसके राइट्स को, तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पबजी चाइना में, और चेंज किया कुछ थोड़ा बहुत गेम को। और उसके बाद उन लोगों ने मोबाइल वर्जन लेके आया, और मोबाइल वर्जन चाइना में जब आया तो वो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। इसकी वजह से चाइना का जो कंपनी है टेंसेंट, तो उसने 10% खरीद भी लिया उसका स्टॉक्स, और इसकी वजह से 2019 में $1.3 बिलियन का उन लोगों ने मुनाफा किया होगा। और इसकी वजह से चाइना इस तरीके से पबजी को बिलोंग तो करता है, और ये बात पता चल गया। शायद मैं सब लोगों को समझा पाया कि पबजी कैसे चाइना को बिलोंग करता है, और मैं अभी थोड़ी देर में पबजी को अनइंस्टॉल भी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चाइना किसी तरीके से मुनाफा कमाए मेरे एंटरटेनमेंट की वजह से, और वैसे भी अच्छा ही होगा। और आप सब देखो, आप लोगों को जो मन मर्जी हो आप कर सकते हो, एंड बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स एंड अनइंस्टॉल कर दो पबजी को अगर मन चाहे तो, जो मैं किसी को तो फोर्स तो नहीं कर सकता। जय हिंद।